آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کا بیان۔ جماعت کی بہت تاکید ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک بے جماعت کی نماز سے جماعت والی نماز کا ثواب 27 گنا ہے۔ مرد کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہگار اور سزا کے لائق ہے، اور کئی بار ترک کرنے والا تو فاسق ہے اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گناہگار ہوئے۔ کن نمازوں کے لیے جماعت شرط ہے؟ جمعہ و عیدین میں جماعت شرط ہے، یعنی بغیر جماعت یہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، یعنی محلہ میں کچھ لوگوں نے جماعت سے پڑھی تو سب کے جمعہ سے جماعت چھوڑنے کی برائی جاتی رہی، اور اگر سب نے جماعت چھوڑی تو سب نے برا کیا۔ رمضان شریف کے وتر میں جماعت مستحب ہے، سنتوں اور نفلوں میں جماعت مکروہ ہے، اور رمضان کے علاوہ وتر میں بھی مکروہ ہے۔ اگر جانتا ہے کہ اعضائے وضو تین بار دھونے میں رکعت چھوٹ جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ تین بار نہ دھوئے اور رکعت نہ جانے دے، اور سمجھتا ہے کہ تین بار دھونے سے رکعت تو مل جائے گی مگر تکبیر اولیٰ نہ پائے گا تو 3 بار دھوئے۔ جماعت ثانیہ کا حکم۔ محلہ کی مسجد میں جس کے لیے امام مقرر ہے، محلہ کے امام نے اذان و اقامت کے ساتھ سنت کے مطابق جماعت پڑھ لی تو اب پھر دوبارہ جماعت و اقامت کے ساتھ پہلے ہی کی طرح جماعت قائم کرنا مکروہ ہے، اور اگر بے اذان جماعت دوبارہ کی تو حرج نہیں جبکہ محراب سے ہٹ کر ہو، اور اگر پہلی جماعت بے اذان ہوئی یا آہستہ اذان ہوئی یا غیروں نے جماعت قائم کی تو پھر جماعت قائم کی جائے، اور یہ جماعت ثانیہ نہ ہوگی۔ جس کی جماعت جاتی رہی اس پر یہ واجب نہیں کہ دوسری مسجد میں جماعت تلاش کر کے پڑھے، البتہ اگر ایسا کرے تو مستحب ہے۔ کن عذروں میں جماعت چھوڑ سکتا ہے؟ ان عذروں میں جماعت چھوڑ سکتا ہے ایسی بیماری کی مسجد تک جانے میں مشقت ہو، سخت بارش، بہت کیچڑ، سخت سردی، سخت اندھیری آندھی، پاخانہ پیشاب، ریاح کا بہت زور ہونا، ظالم کا خوف، قافلہ چھوٹ جانے کا ڈر، اندھا ہونا، اپاہج ہونا، اتنا بوڑھا ہونا کہ مسجد تک جانے سے مجبور ہو، مال یا کھانے کے ہلاک ہو جانے کا ڈر، مفلس کو قرض خواہ کا ڈر، بیمار کو دیکھ بھال کی، یہ اگر چھوڑ کر چلا جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی یا گھبرائے گا، یہ سب جماعت چھوڑنے کے عذر ہیں۔ عورت کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں، دن کی نماز ہو یا رات کی، جمعہ کی ہو یا عیدین کی، چاہے جوان ہو یا بڑھیا، یوں ہی وعظ کی مجلس میں بھی جانا ناجائز ہے۔ اکیلا مقتدی کہاں کھڑا ہو؟ اکیلا مقتدی مرد اگرچہ لڑکا ہو امام کے برابر داہنی طرف کھڑا ہو، بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ 2 مقتدی ہو تو پیچھے کھڑے ہوں، برابر کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے۔ 2 سے زیادہ کا امام کے برابر کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک آدمی امام کے برابر کھڑا تھا، پھر ایک اور آیا تو امام آگے بڑھ جائے اور یہ آنے والا اس مقتدی کے برابر کھڑا ہو جائے، اور اگر امام آگے نہ بڑھے تو یہ مقتدی پیچھے ہٹ جائے یا خود ہٹ جائے یا آنے والا اس کے پیچھے کھینچ لے، لیکن جب مقتدی ایک ہو تو اس کے پیچھے آ جانا افضل ہے، اور اگر 2 ہو تو امام کا آگے بڑھ جانا افضل ہے۔ صف کے مسائل۔ صف سیدھی ہو، لوگ مل کر کھڑے ہوں، بیچ میں جگہ نہ ہو، اور سب کے موڑے برابر ہو اور امام آگے بیچ میں ہو۔ پہلی صف میں امام کے قریب کھڑا ہونا افضل ہے، لیکن جنازہ میں پچھلی صف میں ہونا افضل ہے۔ مقتدی اور تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ یہ بات کہنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر لفظ اللہ تو امام کے ساتھ کہا اور اکبر امام سے پہلے تو نماز نہ ہوگی۔ مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں، نہ الحمد و نہ سورہ، خواہ امام جور سے پڑھے یا آہستہ، امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے۔ صفوں کی ترتیب یہ ہونا چاہیے کہ اگلی صفوں میں مرد ہوں اور اس کے بعد لڑکے اور سب سے پیچھے عورتیں۔ امام کون ہو سکتا ہے؟ امام کو مسلمان، مرد، عاقل، بالغ، نماز کے مسائل جاننے والا، غیر معذور ہونا چاہیے کہ اگر امام میں ان 6 باتوں میں کوئی بات نہ پائی گئی تو اس کے پیچھے نماز نہ ہوگی۔ معذور اپنے مثل معذور کا یا اپنے سے زائد عذر والے کا امام ہو سکتا ہے، اور اگر امام و مقتدی دونوں کے 2 قسم کے عذر ہوں، مثلا ایک کو ریاح کا مرض ہے اور دوسرے کو قطرے کا، تو ایک دوسرے کا امامت نہیں کر سکتا۔ تیمم کرنے والا وضو کرنے والے کا امام ہو سکتا ہے،
मोज़ों पर मसा करने वाला पैर धोने वालों की इमामत कर सकता है। खड़ा होकर नमाज पढ़ने वाला बैठकर पढ़ने वाले की इक्तिदा कर सकता है। वह शख्स जो रुकू सुजूद करता है वह उसके पीछे नहीं पढ़ सकता जो इशारे से पढ़ता है, लेकिन अगर इमाम व मुक्तदी दोनों इशारे से पढ़ते हो तो इक्तिदा जायज है। नंगा सतर छुपाने वाले का इमाम नहीं हो सकता। बद मजहब के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म। बद मजहब जिसकी बद मजहबी हद कुफ्र को न पहुंची हो, जैसे तफजीलिया, उसको इमाम बनाना गुनाह और उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा है। फासिक मौलिन जैसे शराबी, जुआरी, जानी, सूदखोर, चुगलखोर वगैरह जो कबीरा गुनाहें एलानिया करते हैं, इनको इमाम बनाना गुनाह और इनके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा है। वह बद मजहब जिसकी बद मजहबी हद कुफ्र को पहुंच गई हो, जैसे राफजी, अगरचे सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत या सहाबियत से इनकार करता हो, या शेखैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की शान अक़दस में तबर्रा करता हो, जहमी, मुशब्बह, कदरी, और वह जो कुरान को मखलूक बताता हो, वह जो शफाअत या दीदार इलाही या अजाब कब्र या करामन कातिबीन का इनकार करता है, उनके पीछे नमाज नहीं हो सकती। इससे सख्त तरीन हुक्म उन लोगों का है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं बल्कि मुत्तबे सुन्नत बनते हैं, इसके बावजूद बाज़ ज़रूरियात दीन को नहीं मानते, अल्लाह व रसूल की तौहीन करते या कम से कम तौहीन करने वालों को मुसलमान जानते हैं, इनके पीछे भी बिल्कुल नमाज जायज नहीं। फासिक की इक्तिदा का हुक्म। फासिक की इक्तिदा न की जाए मगर सिर्फ जुमा में कि इसमें मजबूरी है, बाकी नमाजों में दूसरी मस्जिद में चला जाए, और जुमा अगर शहर में चंद जगह होता हो तो इसमें भी इक्तिदा न की जाए, दूसरी मस्जिद में जाकर पढ़े। इमाम का तन्हा ऊंची जगह खड़ा होना मकरूह है। अगर बुलंदी थोड़ी है तो मकरूह तंजीही, और अगर बुलंदी ज्यादा हो तो मकरूह तहरीमी है। इमाम नीचे हो और मुक्तदी ऊंची जगह पर हो, यह भी मकरूह और खिलाफ सुन्नत है। मसबूक की तारीफ। मसबूक अपनी छूटी हुई रकतों का अदा करने में मुनफरिद है। मसबूक वह है जो जमात में उस वक्त शामिल हुआ जबकि कुछ रकतें इमाम पढ़ चुका था और आखिर तक इमाम के साथ रहा। मुनफरिद के मायने अकेला पढ़ने वाला जो जमात के साथ न पढ़े। मसबूक ने इमाम को कायदे में शामिल पाया तो इस तरह शामिल हो कि पहली नियत करके खड़ा हो और सीधे खड़े रहने की हालत में तकबीर तहरीमा कहे। तकबीर तहरीमा कहकर फिर दूसरी तकबीर कहता हुआ कायदे में जाए। अगर रुकू या सुजूद में पाए तब भी यूं ही करे। अगर पहली तकबीर कहने में रुकू की हद तक झुक गया तो नमाज न होगी। मसबूक 4 रकत वाली नमाज में चौथी रकत में जमात में शामिल हुआ तो इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए और 1 रकत अलहम्द और सूरह फातिहा के साथ पढ़कर कादा करे और फिर खड़ा हो जाए और उसमें भी अलहम्द और सूरह पढ़े और इस रकत पर कादा न करे बल्कि 1 रकत और पढ़े सिर्फ अलहम्दो के साथ और इस आखिरी रकत पर कादा वगैरह करके नमाज खत्म करे। यानी अलावा इमाम के साथ वाले कादा को उसको 2 कायदे और करने होंगे। एक कादा 1 रकत के बाद और दूसरा कादा इस कादा के बाद 2 रकत और पढ़कर। मसबूक मगरिब की तीसरी रकत में शरीक हुआ और इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए। अलहम्द व सूरत के साथ 1 रकत पढ़कर कादा करे फिर खड़ा हो जाए और अलहम्द और सूरत पढ़कर रकत पूरी करे और कादा आखिरा करके नमाज खत्म करे। यानी अपनी दोनों रकतों में हर रकत पर कादा करे और दोनों रकतों में अलहम्द और सूरह पढ़े। इसमें भी 2 कायदे अलावा इमाम के कायदे के हैं। 4 रकत वाली नमाज की तीसरी रकत में शामिल हुआ तो इमाम के बाद 2 रकत और पढ़े और इन दोनों में अलहम्द और सूरह जरूर पढ़े। पहली रकत छूट गई तो इमाम के बाद 1 रकत पढ़े अलहम्द और सूरह के साथ। मसबूक ने भूल कर इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो नमाज न गई, पूरी करे। अगर बिल्कुल साथ फेरा तो सजदे सहव भी नहीं और अगर इमाम के जरा बाद फेरा तो सजदे सहव वाजिब है। और अगर कसदन सलाम फेरा या समझ कर कि मुझे भी इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिए तो नमाज जाती रही, फिर से पढ़े। कब फर्ज तोड़कर जमात में शरीक हो जाए। किसी ने 4 रकत वाली फर्ज नमाज अकेले शुरू की और अभी पहली रकत का सजदा न करने पाया था कि जमात शुरू हुई तो अपनी नमाज तोड़कर जमात में शरीक हो जाए। और फजर और मगरिब में अगर पहली रकत का सजदा भी कर लिया हो तो भी तोड़कर शरीक जमात हो जाए। 4 रकत वाली नमाज में अगर पहली रकत का सजदा कर लिया तो न तोड़े बल्कि 1 रकत और पढ़कर 2 पर कायदा करके सलाम फेर के जमात में शामिल हो जाए। अगर 3 रकतें पूरी पढ़ ली और जमात कायम हुई तो जमात में शामिल नहीं हो सकता, अपनी ही 4 को पूरी करे, बाद में नफल की नियत से जमात में शरीक हो जाए मगर असर में शामिल नहीं हो सकता इसलिए कि असर के बाद नफल जायज नहीं। 4 रकत वाली नमाज में तीसरी रकत का अभी सजदा न किया था कि जमात शुरू हुई तो नमाज तोड़ दे और जमात में शरीक हो जाए। नमाज तोड़ने के लिए बैठने की जरूरत नहीं, खड़े खड़े तोड़ने
पढ़ने की नीयत से एक तरफ सलाम फेर दे। नफल या सुन्नत या कज़ा शुरू की और जमात कायम हुई, नमाज न तोड़े, पूरी करके शामिल हो। अलबत्ता अगर नफल 4 रकत की नीयत से शुरू की तो 2 रकत पर तोड़ दे, तीसरी और चौथी रकत में हो तो पूरी करे। जमात में मिलने के लिए नमाज तोड़ने का हुक्म उस वक्त है जबकि जमात उस जगह कायम हो जहां ये पढ़ रहा है। अगर यह घर में पढ़ रहा है और मस्जिद में जमात कायम हुई तो तोड़ने का हुक्म नहीं, या यह एक मस्जिद में पढ़ रहा है और दूसरी मस्जिद में जमात शुरू हुई तो नहीं तोड़ सकता। अगरचे अभी पहली रकत का सजदा न किया हो तब भी नहीं तोड़ सकता। कयाम व रुकू सुजूद व कायदा आखिर में तरतीब फर्ज है। अगर कयाम से पहले रुकू कर लिया फिर कयाम की तो वह रुकू जाता रहा। अगर बादे कयाम फिर रुकू करेगा तो नमाज हो जाएगी, वरना नहीं। यूं ही रुकू से पहले सजदा करने के बाद अगर रुकू किया फिर सजदा कर लिया तो हो जाएगी, वरना नहीं। जो चीजें फर्ज हैं इनमें इमाम की पैरवी मुक्तदी पर फर्ज है, यानी अगर फर्ज चीजों में से कोई चीज इमाम से पहले अदा किया और इमाम के साथ या इमाम के अदा करने के बाद अदा न किया तो नमाज न होगी। जैसे इमाम ने पहले सजदा कर लिया और इमाम अभी सजदा में न आया था कि उसने सर उठा लिया, तो अगर इमाम के साथ या बाद को अदा कर लिया तो नमाज हो गई, वरना नहीं। मुक्तदी ने इमाम से पहले सजदा किया मगर उसके सर उठाने से पहले इमाम भी सजदा में पहुंच गया तो सजदा हो गया, मगर मुक्तदी को ऐसा करना हराम है। मुक्तदी को सफ के पीछे तन्हा खड़ा होना मकरूह तंजीही है, जबकि सफ में जगह और मौजूद हो। अगर सफ में जगह न हो तो हर्ज नहीं, और किसी को सफ में से खींच ले तो उसके साथ खड़ा हो तो अच्छा है, मगर यह ख्याल रहे कि जिसको खींचे वह इस मसले को जानता हो, कहीं उसके खींचने से अपनी नमाज न तोड़ दे। और चाहिए यह कि यह किसी को इशारा करे और उसे चाहिए कि पीछे न हटे, उस पर से कराहत दूर हो जाएगी। जमात कायम करने का तरीका। जमात इस तरह कायम की जाए कि नमाज का जब मुस्तहब वक्त शुरू हो जाए तो अजान कही जाए, इसके बाद लोग बावजू मस्जिद में या जहां जमात करनी हो जमा हो, और सुन्नत घर से पढ़कर न आए हों तो इससे फारिग होकर सफ बसफ बैठ जाएं और इमाम अपनी जगह पर बैठ जाए। जब मुअज्जिन तकबीर कहे या हय्या अल फलाह पर पहुंचे तब इमाम और मुक्तदी सब लोग खड़े हो जाएं। इमाम नमाज और इमामत की नियत करके कादा मत्ती सलात से जरा पहले अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले और पढ़ना शुरू कर दे, और मुक्तदी भी इस नमाज को इक्तिदा की नियत करके अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले और सना पढ़कर खामोश खड़े रहें। जब इमाम रुकू में जाए तो मुक्तदी भी रुकू करे और इमाम के साथ पूरी नमाज खत्म करे। अलहम्द और सूरत के सिवा जो कुछ नमाज में पढ़ा जाता है पढ़े। अगर कोई शख्स इमाम के शुरू कर देने या कुछ रकतों के पढ़ लेने के बाद आया तो वह भी इस नमाज और इस इमाम के पीछे पढ़ने की नियत से शरीक हो जाए, और आखिर में जब इमाम सलाम फेरे सब सलाम फेरे। लेकिन जिसकी नमाज कुछ छूट गई है वह सलाम न फेरे बल्कि खड़ा हो जाए और अपनी छूटी हुई रकतों को पूरी करके सलाम फेरे। सलाम के बाद इमाम अपने दाहिने या बाएं या मुक्तदियों की तरफ घूम जाए और दोनों हाथ सीने के सामने फैलाकर दुआ मांगे और मुक्तदी भी दुआ मांगे। दुआ के बाद अपनी अपनी जगहों से हटकर सुन्नत नमाजें पढ़ें। इमाम तकबीर तहरीमा कक्का में सलात से जरा पहले कहे और मुक्तदी इमाम के तकबीर कहने के बाद तकबीर कहें।